Listen, children. Good morning, all of you. See, in the online class yesterday, what did we see? We saw what is a fraction, what is a numerator, what is a denominator, and few types of fractions. Okay, what are the types of fraction we saw yesterday? We saw proper fractions, improper fractions, then we saw mixed fractions, right? So what are proper fractions? Proper fractions का मतलब है if the numerator is lesser than denominator. Numerator को हम nr लिख सकते हैं, denominator को dr लिख सकते हैं, ठीक है? So how about that is for example 3/5, 9/11, like this. See, if the numerators are smaller than the denominator, then they are called proper fractions. What are improper fractions? इसका opposite है, that is numerator is greater than the denominator. That is for example, say 8/4, or you can say 13/5, like this, where you can divide. Improper fraction को आप divide कर सकते हो, क्योंकि आप देखोगे तो डिनोमिनेटर इज लेसर ना, तो आप डिवाइड कर सकते हो. यहाँ डिनोमिनेटर बड़ा है, सो यू कैन नॉट डिवाइड. व्हाट इज अ मिक्सड फ्रैक्शन? मिक्सड फ्रैक्शन इज नथिंग बट दैट कंसिस्ट ऑफ अ होल नंबर, एज वेल एज प्लस वन फ्रैक्शन, ठीक है? दैट इज फॉर एग्जाम्पल 3, दैट इज अ होल नंबर. 1/3 is a fraction, ठीक है? So this is called the mixed fraction. So these are the three main things we saw yesterday, or we had, ठीक है? But they are very simple. First thing we are going to see about unit fraction. Unit. What is a unit? Unit means one. Unit means one. So unit fraction means that has one in the numerator. For example, अगर for these, consider these fraction 1/8, 1/7, 1/11, 1/28, 1/50. इसमें what is the common thing you can see here? In all this fraction, the numerator is 1. In all these fractions, the numerator is 1. So, I think you can guess what is a unit fraction. Unit fraction का मतलब होता है, अगर if you have 1 in the fraction numerator, then it is called the unit fraction. That is, if numerator is equal to 1, then that fraction is called as unit fraction. Okay, so what is a unit fraction? If in the given fraction, if the numerator is 1, then it is called the unit fraction. Okay, then we are going to see like fractions and unlike fractions. यहाँ लाइक का मतलब क्या है? लाइक का मतलब आपको पसंद नहीं है, आई लाइक केक्स, आई लाइक आइसक्रीम्स, वो वाला लाइक नहीं है. ये लाइक है सेम. मतलब शी लुक्स लाइक हर मदर, बोलते हैं ना हम, शी लुक्स लाइक सेम. सो दैट इज सेम. लाइक मीन सेम. सो सेम का मतलब क्या है? वेरी सिंपल. अगर आपका डिनोमिनेटर्स जितने भी फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, इसमें आपका डिनोमिनेटर सेम है, then it is called like fractions. For example, 2/5, 9/5, 7/5, 18/5. इसमें you can see all the fractions, the denominator is 5, that is common, that is same. So it is called like fractions. What are the like fractions? Like fractions का मतलब ये होता है, if the denominators are same in a given fractions, then they are called like fractions. What are unlike? Same का opposite. What is the same का opposite? क्या है? Different, है ना? तो आप guess कर सकते हो, if the denominators are different, then it is called unlike fractions. For example, 1/8, 3/7, 5/11, 13/19. So here if you see, all the denominators are different, nothing is same, so it is called unlike fractions. ठीक है? मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ. See for example 1/8, 11/9, 6/3, 4/8, 2/5, say 7/8. ठीक है? I am giving so much of fractions.
इसमें what are the like fractions? 1/8, 4/8, 7/8. These are the like fractions. Why they are called like fractions? Because they are called like fractions because the denominators are same. The remaining are unlike fractions because the denominators are not same. So अभी तक हमने कितनी fractions देखा है? एक proper देखा है, improper, mixed, unit, like, unlike. Okay. Now we are going to see very important one, that is equivalent fractions. What are equivalent fractions? पहले मैं आपको एग्जाम्पल दे दूंगी, उसमें आपको समझ आ जाएगा. ठीक है, then we can discuss about the definitions. See for example, okay, total parts कितना है? It is divided into half, right? It is divided into half, right? फिर मैं इसी को I am writing like this. इसी को हम I am writing like this. So how will you write this? For example 1/2. For example, if I am shading this, ठीक है, तो the fraction will be written as 1/2. ठीक है, here बीच में सेम लेंथ सेम फिगर, लेकिन मैंने एक और लाइन यहाँ खींच लिया. सेम शेडिंग होगा ये पूरा. ठीक है, लेकिन यहाँ फ्रैक्शंस चेंज हो रहे हैं ना. टोटल पार्ट्स कितना हो गया? इधर 1 2 3 4 हो गया, लेकिन कितना शेडेड पोर्शन है? 2. लेकिन मैंने फिगर चेंज किया? फिगर ने चेंज नहीं किया, बस मैंने उस फिगर को और मैंने पार्ट कर लिया. ठीक है, फ्रैक्शन डिफरेंट है लेकिन इसका वैल्यू सेम है. डू यू अंडरस्टैंड दैट? आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट, राइट? यहाँ फ्रैक्शन डिफरेंट है. यहाँ 1/2 यू आर गेटिंग, हियर यू आर गेटिंग 2/4, लेकिन पिक्चर सेम है, वैल्यू इसका सेम है. ठीक है, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, वेयर you can have, for example, same figure I am taking, ठीक है, ऐसे है, सेम लाइक दिस, लेकिन मैं यहाँ एक और कर रही हूँ और यहाँ एक और कर रही हूँ. ठीक है, तो सेम हियर, ये सारा कलर्ड है. आपको समझ आ रहा है ना? ये तीनों में इफ यू सी द पिक्चर इज सेम, द फिगर इज सेम, द डायग्राम इज सेम, ओनली थिंग उसको मैं पार्ट्स और बढ़ा रही हूँ बस. ठीक है, और इसमें टोटल पार्ट्स कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स हो गया. इसमें कितनी शेडेड है? 1 2 3 4. डू यू अंडरस्टैंड नाउ व्हाट आई से? यू कैन इंक्रीज, कितने भी आप पार्ट को इंक्रीज करो लेकिन उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा. आप देखोगे तो ओनली द लेफ्ट साइड इज कलर्ड, द राइट साइड इज not colored, because I am not changing the value, I am not changing the diagram. मैं बस जितने भी है I am just making into all halves. ठीक है, for example if you take a, see आपका जो पसंद वाला है मैं ले रही हूँ पिज़्ज़ा. ओके, now I am cutting into 2. ठीक है, ठीक है, फिर इसको मैं शेड कर रही हूँ. so this will become 1/2. मैं इसको अगेन I am cutting it, तो अब क्या होगा? 2 हो गया है ना. दिस विल बिकम 2/4, लेकिन मैंने चेंज नहीं किया. सेम पिज़्ज़ा, आई एम यूजिंग द सेम पिज़्ज़ा, बट ओनली थिंग, फॉर एग्जाम्पल और 2 फ्रेंड्स आ गई तो मुझे उनको भी देना पड़ेगा, तो इसलिए आई एम कटिंग इनटू 4. ठीक है, सो नाउ अगेन आई एम ड्रॉइंग अ लाइन लाइक दिस. ठीक है, सो इसमें क्या होगा? सो इसमें कितना 1 2 3 4 पीसेस आर शेडेड, मतलब ये इट इज टेकन आउट, इट इज ईटन. कितने लेफ्ट है? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 में 4. लेकिन इसमें मैंने कोई चेंज किया? नो. ओनली थिंग
जितने जितने लोग आ रहे हैं, हम करते हैं ना क्लासेस में भी, अगर इफ़ यू ब्रॉट 1 केक, अभी आप पहले 2 फ्रेंड्स आता है उसको आप काटोगे, और 2 फ्रेंड्स आएगा तो आप क्या करोगे, मना तो नहीं कर सकते उनको, क्या करोगे, उसको और छोटा करोगे, ठीक है। सेम केक को और पार्ट्स करोगे, और 2 फ्रेंड्स आ गए तो और पार्ट्स करोगे, तो उसी केक, सेम केक, क्वांटिटी सेम है, जितने आपके पास केक था वही सेम है, लेकिन उसकी पार्ट्स अलग अलग हो जाता है। तो इसमें वैल्यू चेंज नहीं होता है, लेकिन पार्ट्स इंक्रीज होता है, इसमें पार्ट्स इंक्रीज होता है। दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। समझ आ गया आपको? मतलब सेम टाइप ऑफ, फॉर एग्जाम्पल, अगेन वन मोर एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू, यू आर हैविंग अ पीस ऑफ केक, ठीक है। आपने सोचा है कि आप और अपने फ्रेंड शेयर करेंगे, तो हो गया 1/2, ठीक है। तो आपने इसको शेयर कर लिया, आपने ये ले लिया, बाकी रह गया। आप देखा, आप दूसरी फ्रेंड आ गई, मना नहीं कर सकते हो, तो क्या करें, आप क्या करोगे, चलो इसको 4 पार्ट करें, ठीक है ना, उसको आप लोगे, लेकिन सेम केक तो सेम ही है, द सेम केक आपका सेम है, लेकिन उसको 4 पार्ट कर रहे हो। आप देखा और 4 फ्रेंड्स आ गए, अरे यार अभी क्या करें, अगेन दोबारा 4 पार्ट्स करोगे, ठीक है। तो केक सेम है, केक आपका सेम है, लेकिन उसका पार्ट्स इंक्रीज चेंज हो रहे हैं, लेकिन वैल्यू, दैट इज द केक का जितनी अमाउंट था, जितना बड़ा था, वही सेम है। दैट इज व्हाट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का मतलब है। फ्रैक्शंस चेंज होगा, लेकिन आपका वैल्यू चेंज नहीं होता है। दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, ठीक है। दैट इज कॉल्ड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। नाउ हाउ टू फाइंड आउट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया 3/4, हाउ विल यू फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 3/4? वेरी सिंपल, पहले 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6/8, फिर 3 से मल्टीप्लाई करोगे 9/12, फिर 4 से मल्टीप्लाई करोगे 12/16, बस इट गोज ऑन। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर में आप मल्टीप्लाई करोगे, देन ऑटोमेटिकली यू विल गेट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। फॉर एग्जांपल आप देखो इधर 1/2, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ गया, 2/4 आ गया, सेकेंड पार्ट, ठीक है, समझ गए। सेम 1/2 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, सो यू गेट 4/8, मिल गया आपका थर्ड पार्ट 4/8, ठीक है। लेकिन आपके इसमें एक चीज़ याद रखना है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर शुड बी मल्टीप्लाइड बाय द सेम नंबर। ऐसे नहीं ऊपर 2 से कर लिया, डिनोमिनेटर को 3 से किया तो आपके आंसर सही नहीं आएगा। अंडरस्टूड? एनी डाउट? नो, वेरी गुड। मैं क्या सोच रही हूँ, अभी यहाँ तक हम आज का ख़त्म करें। प्लीज़ आप एक बार पूरा रिवाइज करो। हाँ, अगेन मैं रिकैप कर रही हूँ, हमने आज क्या क्या देखा है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस में क्या क्या देखा है हमने, प्रॉपर फ्रैक्शंस, improper fractions, mixed fractions, unit fractions, like fractions, unlike fractions, and we saw the last one, that is equivalent fractions. I hope you enjoyed the class and you understood the class. ठीक है, आप next online classes में थोड़ा सा briefly I will ask you oral questions regarding this. So be prepared. रोज अपना काम ढंग से करोगे, कोई असाइनमेंट्स का इनकम्प्लीट वर्क नहीं होना चाहिए। एवरीबडी विल टेक द स्टडी सीरियस एंड डू योर वर्क, ठीक है ना बेटा। बाय।